नमस्कार, आप देख रहे हैं राज्यसभा टीवी और ये वक्त है राज्यसभा समाचारों का। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वायुयान संशोधन विधेयक 2020 को संसद की मंजूरी। राज्यसभा में रचनात्मक चर्चा के बाद ध्वनिमत से हुआ पारित। भारत में कोरोना संक्रमण से मृत्यु दर अन्य देशों की तुलना में बेहद कम। कोरोना महामारी और सरकार के कदमों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का राज्यसभा में बयान। कहा, सरकार की रणनीति से हजारों लोगों की जान बचाने में मिली कामयाबी। कोरोना के सुरक्षात्मक उपायों के तहत सामाजिक दूरी के बजाय सुरक्षित दूरी शब्द का हो इस्तेमाल। राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान टीएमसी सांसद शांतनु सेन की तरफ से मांग उठाने के बाद सभापति एम वेंकैया नायडू का सुझाव। अन्य सदस्यों ने भी उठाए जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दे। चलिए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। तो आपको बता दें कि वायुयान संशोधन विधेयक 2020 को संसद की मंजूरी मिल गई है। ये विधेयक आज राज्यसभा में चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने वंदे भारत मिशन और उड़ान योजना की कामयाबी का जिक्र किया। वायुयान संशोधन विधेयक 2020 में अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 1934 के कानून में बदलाव के प्रावधान है। विधेयक का मकसद नागर विमानन महानिदेशालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो और वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो को विधायी स्वरूप प्रदान करना है। So I say with a great degree of satisfaction and humility that the total number of passengers, Indian citizens stranded abroad who have been brought back is close to 1.6 million, 16 lakhs, and about 300,000 to 400,000 have been carried out. This is the largest, most comprehensive process of evacuation and repatriation of Indian citizens or of citizens of any country at any time in history. When you have pent-up demand, when entire country and civil aviation is locked down, and since 23rd March, yes, when suddenly on the first day when we opened the western sector, we got not 6 million, we got 36 million hits. Obviously the site will crash, but there were no agents. This was being done directly, and it's despite the attempt of many of my friends to malign this process. We have looked into it. They have acquitted themselves creditably. And privatization of Air India, if I could help it, we would keep it. But with a 60,000 crore on debt, the choice is not between privatization and not privatization. Some of my colleagues should realize the choice is between privatization and closing down. But we are confident that the airline in running way, doing extremely well, will be given to its new owner in order for Air India and that flag to be kept flying. Thank you very much. और इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस, बीजेपी और दूसरे दलों के सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लिया। Recently, the government has decided to award airport to the private parties in the name of development of airport infrastructure development. The government is selling of the airport, Adani. There is an international attempt from the government to nepotism, help the crony capitalist friends. The government has ambitious plans for the expansion of the civil aviation sector, and this bill certainly has provisions to ensure that we have affordable, safe and accessible aviation for the people of our country. कि हमको इस सेक्टर को हर तरह से मदद करने की जरूरत है। खास करके ये कोविड की पैंडेमिक में आप देखें तो हमने हवाई सेवाएं शुरू में बंद कर दी, अब हमने शुरू भी की है, लेकिन एयरलाइंस जो है उनकी आज आर्थिक परिस्थिति में किसी एक एयरलाइन ने, एयर इंडिया से लेकर हर एयरलाइन को आज आर्थिक संकट का बहुत बड़ा सामना करना पड़ रहा है। Staff in Air India, I know them because I have a great contact with them.
I am in the workers' movement in the air sector. Their salary is not paid. And the government is asking them, you go for leave for 5 years without pay. और राज्यसभा में आज आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पर चर्चा की शुरुआत हुई। ये विधेयक गुजरात के जामनगर में 3 आयुर्वेद संस्थानों का विलय करने और इससे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान का दर्जा देने से संबंधित है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इससे संस्थान के संचालन में सुविधा होगी और इसे केंद्र सरकार से मदद मिल सकेगी। सदन में इस विधेयक पर चर्चा जारी रहेगी। All these institutes are combining together to create this institution, and this is for promotion of quality and excellence in education in Ayurveda, and also to promote research and training in Ayurveda and the allied disciplines. This is a welcoming bill, but please see that this postgraduate research institute for teaching and research should be done along with clinical trials, particularly in Kerala, Karnataka, preferably Maharashtra and West Bengal. राज्यसभा में आज 2 अहम विधेयक पेश किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता दूसरा संशोधन विधेयक 2020 किया। और आपको बता दें, इससे पहले उन्होंने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन अध्यादेश 2020 के जरिए तत्काल विधान बनाने के संबंध में विवरण भी सभा पटल पर रखा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उच्च सदन में राष्ट्रीय सहबद्ध और स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग विधेयक 2020 पेश किया। और अब बात करते हैं लॉकडाउन में असल में जो उपाय किए गए उसको लेकर किस तरह से चर्चा हो रही है। तो लॉकडाउन के उपायों में देश में करीब 14 से 29 लाख मामले और 37 से 78,000 मौतें कम हुई हैं। कोविड-19 महामारी और सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज राज्यसभा में बयान देते हुए जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार कोविड-19 को चुनौती के रूप में लेते हुए स्वास्थ्य क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने की हर पुरजोर कोशिश कर रही है। कोरोना महामारी से निपटने के लिए सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने राज्यसभा में मंगलवार को बयान दिया। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से भारत में कोरोना संक्रमण की स्थिति नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि सरकार देश में कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय कर रही है। इसी के चलते भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर कोरोना संक्रमण और मौतों का आंकड़ा दुनिया के देशों में सबसे कम है। With our endeavor to manage COVID-19 through a whole of government and whole of society approach, India has been able to limit its cases and deaths per million to 3,320 cases per million and 55 deaths per million population respectively, which is one of the lowest in the world as compared to similarly affected countries. डॉक्टर हर्षवर्धन ने सदन को बताया कि 4 महीने के देशव्यापी लॉकडाउन से देश को कोरोना वायरस के तेजी से प्रसार रोकने में मदद मिली। साथ ही स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में भी सहायता मिली है। Currently the testing is about 1 million tests a day, which translates to 720 tests per million population per day, much higher than that stipulated by WHO, which is 140 tests per million population per day. Today we have an indigenous production capacity of more than 10 lakh kits per day. For appropriate management of COVID-19 cases, a 3-tier arrangement of health facilities, that is COVID care center with isolation beds for mild or pre-symptomatic cases, dedicated COVID health centers with oxygen supported isolation beds for moderate cases, and dedicated COVID hospitals with ICU beds for severe cases has been implemented. स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग अभी लंबी चलेगी। इस समय में देश में प्रतिदिन 10 लाख से अधिक लोगों की जांच की जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार देश में कोविड-19 वैक्सीन के विकास पर भी ध्यान दे रही है। 30 से अधिक वैक्सीन विकास के विभिन्न चरणों में हैं और इनमें से 4 से ज्यादा वैक्सीन एडवांस प्री क्लिनिकल स्टेज में हैं।
कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। सभापति एम वेंकैया नायडू ने एक सुझाव दिया है। उनका कहना है कि देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग शब्द की जगह हमें शारीरिक या फिर सुरक्षित दूरी के बारे में बात करना शुरू करना चाहिए। विशेष उल्लेख के माध्यम से सांसद शांतनु सेन की तरफ से शारीरिक दूरी शब्द का उपयोग करने की मांग के बाद सभापति महोदय ने ये बात कही। जो सुझाव दिया ना डॉक्टर शांतनु सेन ने, ये महत्वपूर्ण सुझाव है। और एसोसिएट ना सिर्फ भेज दीजिए। मेरा कहना है इसको सुरक्षित दूरी, रामगोपाल जी बता पाएंगे। सुरक्षित दूरी, सेफ डिस्टेंस, दैट विल बी बेटर वर्ड। पारस्परिक दूरी का अर्थ दोबारा होगा, घर में झगड़ा होगा, ये उससे ठीक है। Yes, social distancing should be replaced by an appropriate word. सभापति एम वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में सभी सदस्यों को अपनी बात कहने के लिए कहा है कि आप अपना हाथ उठाइए, अपनी बात कहिए, क्योंकि इससे सारे नियमों का सही से पालन हो सकेगा। विशेष परिस्थितियों में हो रहे सत्र के दौरान सदन की कार्यवाही और लाइव टेलीकास्ट की सुविधा को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए यह बेहद अहम है। बढ़ते हैं आगे और अगली खबर का रुख करते हैं। तो राज्यसभा की परिसीमा में 252वें सत्र के दौरान लोकसभा चैंबर, उसकी लॉबियां और दीर्घाएं भी शामिल कर ली गई हैं। संसदीय इतिहास में यह अनूठा निर्देश है कि जो कोविड-19 संकट के नाते सभापति राज्यसभा की ओर से सांसदों के बैठने की नई व्यवस्था के मद्देनजर जारी किया गया है। राज्यसभा के सभापति के पास तमाम विशेष अधिकार और शक्तियां हैं, जिसमें परिसीमा या प्रेसिडेंट्स ऑफ द काउंसिल का निर्धारण भी है। राज्यसभा के विधायी अनुभाग की ओर से सभापति के इस आदेश को बुलेटिन 2 में शामिल किया गया है। और अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस की। इस मौके पर राज्यसभा सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि संसद लोकतंत्र का स्तंभ है और विधायिका के तौर पर संसद लोकतांत्रिक सिद्धांतों के ध्वजवाहक हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर सांसदों से संविधान के लोकतांत्रिक सिद्धांतों को और समृद्ध करने का संकल्प लेने की बात कही। डेमोक्रेसी इज ए यूनिवर्सल वैल्यू is based on the freely expressive will of the people to determine their own political, economic, social and cultural systems and their full participation in all aspects of life. India is being the largest democracy in the world. The importance of day for us cannot be emphasized enough. Democracy is the thread which holds us together. It is the bedrock of our unity and diversity. It is the binding force which has helped propel our country on the path to progress. राज्यसभा में आज कई अतारांकित सवालों के लिखित में जवाब दिए गए। सदन में स्वास्थ्य और रक्षा समेत कई मंत्रालयों से जुड़े सवालों के जवाब दिए गए। सरकार ने टीबी के मरीजों को कोविड-19 की जांच कराने की सलाह दी है। राज्यसभा में सांसद सुशील कुमार गुप्ता के एक सवाल के जवाब में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सभी कोविड पॉजिटिव टीबी रोगियों को स्तर की गंभीरता के मुताबिक कोविड अस्पतालों और विशेष केंद्रों में दाखिल किया जाता है। कनक मेदला रविंद्र कुमार के अतारांकित सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में फेस मास्क की व्यापक उपलब्धता के लिए इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसे आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत लाया गया है। देश की 135 करोड़ की अनुमानित आबादी के हिसाब से इस समय 1343 लोगों पर एक डॉक्टर उपलब्ध है। देश में 12,55,000 एलोपैथिक डॉक्टर भारतीय चिकित्सा परिषद में पंजीकृत हैं, जिसमें से 10,05,000 सक्रिय सेवाओं में हैं। राज्यसभा में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने डेरेक ओब्रायन के अतारांकित सवाल के जवाब में ये जानकारी दी। भारत के रक्षा खर्च में हर साल लगातार इजाफा हो रहा है। 2017-18 में रक्षा बजट 3,59,000 करोड़ रुपए था, जो 2020-21 में बढ़कर 4,71,000 करोड़ रुपए हो गया। इस वित्त वर्ष में रक्षा बजट केंद्र सरकार के कुल व्यय का 15.49% है। राज्यसभा में रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नायक ने सांसद प्रियंका चतुर्वेदी के अतारांकित प्रश्न के जवाब में ये जानकारी दी।
अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद देखिए राज्यसभा न्यूज।